शुरुआत इंडिगो संकट की हम करने जा रहे हैं, जिस पर डीजीसीए ने बड़ा एक्शन लिया है। इंडिगो को 5% उड़ानें कम करने का आदेश डीजीसीए ने जारी कर दिया है। इंडिगो कल शाम तक अपना नया शेड्यूल दे, ये डीजीसीए की तरफ से इंडिगो को दो टूक कह दिया गया। इंडिगो ने बिना तैयारी उड़ानों की संख्या बढ़ा दी। तो ये गलती इंडिगो की जो इस पूरे मामले में सामने आई है, तो अब कुल मिलाकर इंडिगो के पर कतरने की ये बड़ी तैयारी, डीजीसीए की तरफ से साफ निर्देश दे दिए गए हैं। इंडिगो को 5% उड़ानें कम करने का आदेश डीजीसीए ने दे दिया है। कल शाम तक इंडिगो को नया शेड्यूल देना होगा। बिना तैयारी उड़ानों की संख्या इंडिगो ने बढ़ा दी, यह भी डीजीसीए की तरफ से साफ किया गया। Stabilizing Indigo's daily flights, which had fallen drastically to 706 on 5th of December, have recovered to over 1800 flights yesterday and are expected to rise further today. All other airlines continue to operate smoothly across the country, and the airports are reporting normal conditions without crowding or distress. Refunds, baggage tracing, and passenger support measures remain under continuous supervision by the ministry. At the same time, accountability will be ensured. DGCA has issued show cause notices to Indigo's senior leadership and commenced a detailed enforcement investigation. Depending on the outcome, strict and appropriate action as empowered under the Aircraft Rules and Act will be taken. No airline, however large, will be permitted to cause such hardship to passengers through planning failures, non-compliance or non-adherence to statutory provisions. Honorable Speaker, sir, safety in civil aviation is completely non-negotiable. India is a founding member of the International Civil Aviation Organization and remains firmly committed to the highest global standards of safety. Revised flight duty time limitations, scientifically designed to prevent pilot fatigue, are being implemented. These reforms are essentially for passenger safety. DGCA adopted a phased-wise implementation plan in consultation with all the stakeholders. Phase 1 from 1st July 2025, Phase 2 from 1st November 2025. Indigo had clearly assured full compliance with these norms and also confirmed its preparedness to undertake its winter schedule. Despite these assurances, prima facie, it was observed that internal rostering disruptions led to large-scale cancellations, causing inconvenience to thousands of passengers. The ministry advised the regulator to act immediately. Inquiry orders and show cause notice to CEO and COO of Indigo were issued. Also, Indigo has been directed to restructure its operations, add reserve crew capacity, improve passenger handling, and restore normal schedules without any delay. Enhanced oversight on the ground continues. Passengers' interests have been at the center of every decision taken by the government. We intervened to cap fares so that no passenger would be exploited due to the sudden demand spikes and opportunistic pricing. Indigo was ordered to issue refunds promptly, and as informed by them, more than 750 crore has already reached the passengers. For the passengers who wanted the rebookings to be done, the same were done without any additional charges. We are monitoring each and every case of baggage handling over and ensuring that communication with passengers is both timely and dignified. As informed by Indigo, process of refunds, baggage handling are over in its final stages. Our 24/7 control room continues to assist passengers directly whenever needed. Honorable Speaker, sir, going forward, the government is determined to build a more robust and competitive aviation ecosystem. Through our policies, we are encouraging more new airlines to start and operate in India, ensuring fair access to airport capacity and eliminating any possibility of duopoly, controlling connectivity and pricing in our skies. More airlines mean more choice, more affordability, and more resilience for the passengers. In the last 1 decade, Indian aviation has evolved to become more inclusive. India has emerged as the world's fastest growing aviation market with year-on-year passenger growth of around 12%.
India is already third biggest domestic aviation market with a huge potential for future growth. And the policies of the government will ensure that this growth trajectory is kept intact. To summarize, operations are stabilizing fast, safety remains fully in force, Indigo is being held accountable, passengers' convenience and dignity are being protected, and long-term measures are underway to make India's aviation sector stronger and more passenger-centric. The government will remain fully vigilant until normalcy is achieved and will continue to ensure that every passenger in India travels safely, comfortably, and with the respect they deserve. Thank you, Honorable Speaker, sir. केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने जवाब दिया है लोकसभा में और उनकी तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया है कि अब हालात सामान्य हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए, नए नियम जो लागू किए गए थे फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन को लेकर, उसी के चलते इंडिगो ने पहले भरोसा दिया था कि नए नियम के हिसाब से सब कुछ सुचारू रूप से चलेगा, लेकिन इंडिगो इस भरोसे पर खरा नहीं उतर पाया। ऑपरेशंस इंडिगो के सुचारू रूप से नहीं चले। इंडिगो के सीईओ से लेकर सीईओ को शो कॉज नोटिस दिया गया है। सरकार की तरफ से साफ किया गया है कि जल्दी ही तमाम ऑपरेशन सामान्य हो जाएंगे। इंडिगो की जवाबदेही तय की जा रही है। यात्रियों की सुरक्षा, यात्रियों की सुविधा और यात्रियों का सम्मान, यही सरकार की प्राथमिकता है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी वरुण भसीन इस वक्त मौजूद हैं। वरुण, सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है, इंडिगो की जवाबदेही भी तय की जाएगी, साथ ही यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा, सम्मान का ख्याल रखा जाएगा और रिफंड से लेकर सामान वापसी तक को लेकर मंत्री ने संसद को भरोसा दिया कि सब कुछ जल्दी ही मुकम्मल कर लिया जाएगा। लेकिन एयरपोर्ट्स की क्या है तस्वीर? जो दावा किया जा रहा है उसका सच जमीन पर क्या नजर आ रहा है? वरुण जी बिल्कुल, देखिए, अगर आंकड़ों से अगर हम समझाने की कोशिश करें कि अब सबसे पहले सरकार ने इंडिगो कहा है कि आपकी 5% फ्लाइट हम कम कर रहे हैं, यानी कि 2200 में से 100 से 150 फ्लाइट अब कम कर दी जाएंगी। लेकिन एयरलाइंस क्या करती हैं? इंडिगो ने क्या किया था, सेल लगा लगाकर अपनी अगले 6 महीने की पहले से ही सभी फ्लाइट्स को फुल कर रखा है, लगभग बेच रखा है। तो अब वो 100 फ्लाइट तो रोजाना हमें एक आंकड़ा देखने को मिलेगा कि इंडिगो की कैंसिल दिख रही है। जिन लोगों ने बुकिंग कराई उनको पैसा उनका वापस मिल जाएगा, लेकिन वो 100-150 फ्लाइट्स रोजाना एक आंकड़ा इंडिगो अगले 3-4 महीने तक हमें नजर आएगा। यानी कि एक फ्लाइट में अगर 150 व्यक्ति बैठता है तो 15,000 लोगों पर रोज इंपैक्ट अगले 3 महीने तक, 4 महीने तक पड़ने वाला है, जितनी एडवांस बुकिंग इस वक्त इंडिगो ले चुका है। यानी कि 15,000 लोग रोजाना अभी भी परेशान रहेंगे। उनको अगर आगे बुकिंग करानी है, रिफंड कराना है, उसके लिए सरकार अपना साथ दे रही है। लेकिन इस वक्त इंडिगो का ये ऑपरेशन ब्लंडर बहुत लंबा जाएगा। फरवरी की जो तारीख दी गई है वो बिल्कुल अभी उसके आगे भी चलेगा। अब रोस्टर कम हो चुके हैं, दूसरी एयरलाइंस को अब इनकी फ्लाइट्स दी जाएंगी तो लोगों को वापस से अपनी नई प्लानिंग करनी पड़ेगी, यानी कि उनकी वहां फ्लाइट्स कैंसिल होंगी वापस से। इस वक्त सरकार ने उनको यह आराम दिया कि अब पे कैपिंग कर दी, यानी कि आप अगर वापस से कहीं और एयरलाइन पे भी बुक कर रहे हैं तो आपको इतना ऊंचा ज्यादा दाम नहीं देना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ साथ अब जो हो चुका है उसके सवाल पूछे जा रहे हैं। आज भी सीओओ यहां पर डीजीसीए में मौजूद हैं, उनसे इस वक्त पूछताछ के लिए यानी एक तरीके से पूछा गया है कि आप अकाउंटेबल मैनेजर थे, आपने क्या किया? तो विंटर सेशन में आप इतना जानकारी हमें देते थे, उस पर आपने कोई काम नहीं किया। तो सरकार सवाल तो पूछ रही है, लेकिन यात्रियों के लिए साफ है कि अगर आपकी अब 100 से 150 का कैंसिल के रोज मैसेज आपके पास पहुंचने शुरू हो जाएंगे। नया रोस्टर कल 5 बजे तक देना है, यानी कि अभी भी वो आंकड़ा जरूर रहने वाला है जो कि 100 कैंसिल का कदम जो सरकार की तरफ से उठाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ मंत्री ने संसद को यह भी बताया कि लॉन्ग टर्म को लेकर अब सरकार जो है वो मोनोपोली खत्म करने की दिशा में भी आगे बढ़ेगी और नई एयरलाइंस जो है उनको लेकर भी आगे के लिए सरकार विचार करेगी। लेकिन महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि ये कितना आसान या कितना मुश्किल रहने वाला है इस मोनोपोली को खत्म करना। 65% हिस्सेदारी घरेलू हवाई सेवा में इसी इंडिगो एयरलाइंस की। वरुण बिल्कुल, देखिए, पहले 2200 उड़ाते थे, अब 2000 के आसपास वो आंकड़ा कर दिया गया है, यानी कि वो फीसदी ही तो कम करना है। इंडिगो खुद आकर बार बार विंटर सेशन है, ज्यादा डिमांड होगी तो हम ज्यादा फ्लाइट्स उड़ाएंगे, इस चीज की डिमांड सरकार से करता था। सरकार ने उनको 9% बढ़ाकर दी फ्लाइट्स की, आप चलिए इससे ज्यादा चला सकते हैं। लेकिन अब वापस से उन्हें 5% पीछे किया गया है। एफडीटीएल के नियम इस वक्त जो उनको राहत दी गई है जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा इस वक्त फ्लाइट उड़ा पाए, और उसके साथ साथ अब वो आंकड़ों को समझने का टाइम आ चुका है कि क्या कोई नई एयरलाइन की एंट्री हो सकती है। और ये इतना आसान नहीं है,
है। कोई पायलट भी नया लेने के लिए 6 महीने 8 महीने के इस वक्त प्रोसीजर होते हैं। तो अब लेकिन इस चीज ने, इस त्रासदी ने यह बता दिया है कि नए इस वक्त जो जितनी भी एयरलाइंस हैं, अगर आना चाहती हैं, विदेशी एयरलाइंस आना चाहती हैं, तो उनको एंट्री देने के लिए एक रास्ता बनाया जाए, एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए। लेकिन महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि सरकार की तरफ से जो कहा जा रहा है कि इंडिगो की तरफ से कहीं ना कहीं ये गूफ अप हुआ है, ये सरकार ने माना है। और इंडिगो ने जो भरोसा दिया था जब वो एफडीटीएल के नए नियम लागू हो रहे थे, तो एयरलाइंस को भरोसे में लेकर सरकार की तरफ से नियम लागू करवाए गए ना। आज केंद्रीय मंत्री ने इस बात का जिक्र सदन में किया कि साहब, इंडिगो ने कहा था कि हाँ, हम सब संभाल लेंगे, लेकिन इंटरनली ऑपरेशंस में दिक्कत हुई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।